Good morning, dear children. Welcome to the class. Today we are going to start a new chapter of geography named as manufacturing industry. We already looked about the secondary activity in our book economics also in the sectors of Indian economy. So you have to interconnect the books, right? That means if you are reading geography, it doesn't mean that you should not have a proper knowledge of economics. So all the knowledge are interrelated. So let's start this chapter. The first thing we will start in this chapter is what is manufacturing. All of you know that if we produce a large amount of goods, right, by processing raw material, it is called manufacturing, right? So simple सा definition है production of goods in large quantity after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. So look at about it that, for example, this is cotton, right? Cotton से हमने क्या बनाया? Shirt बनाया. Which have higher value? Shirt have higher value, right or not? Obviously, shirt is selling in 200 rupees and cotton is of only 40 rupees. That means what we did, we process the raw material and make it in our valuable goods, right? This is called manufacturing. So this manufacturing is also known as secondary sector. Examples you can look at here: cloth from cotton. Cotton is raw material, cloth is finished goods, right? Sugar from sugarcane, paper from wood, iron from iron ore, aluminum from bauxite, right? This is manufacturing. So look at here, these are the manufacturing activity. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि ये मास प्रोडक्शन होता है, राइट? सो दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. कहीं पर पेपर का प्रोडक्शन होता है, कहीं पर ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्शन होती हैं, राइट? कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, राइट? सो this is manufacturing. Now come to the second very important question: what is the importance of manufacturing? मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, it helps in the modernization of agriculture. So all of you know that nowadays we are able to produce much amount of grain in our country. Why? Because of industry, right or not? There are a lot of things. For example, we have harvesting machine, we have sowing machine, we have fertilizer, we have pesticides. All these comes from industry, which helps in the increasing in the production of agricultural goods, right? Second importance, it reduces the dependence of people on agriculture. So remember the sectors of Indian economy. I told you that agriculture cannot provide jobs to all the people. Why? Because in agriculture we have limited need. ठीक है? If we are eating 3 rotis per day, it doesn't mean कि next day से I will eat 10 rotis per day, right or not? Simple सी बात है. So agriculture में जो काम है, right, वो nowadays is limited, right? We cannot totally dependent upon agriculture for employment, right? So because of this manufacturing industry, what is happening? Some people who are working in agriculture, we can shift from agriculture to the manufacturing, right? It will provide the job in manufacturing sector. Third one, it brings down the regional disparities. What is it? What is regional disparities? India is a vast country, all of you know, right? Some regions are too much developed, like region of Maharashtra, Karnataka, right or not? Region of Kerala. These are the region which is developed, right? The people have more income here, right? But some states like Odisha, Bihar, Jharkhand, these states have very low income. So it means that there is a disparities, somewhere high income, somewhere low income, right? These disparities can be ended with the help of industry. How? If we establish
new industries in these areas, in the tribal areas, in the backward areas, then the job will be created in that areas, and the people of these areas also able to work, right? Next, export of manufactured goods bring foreign exchange. All of you know that foreign exchange. What is foreign exchange? We discussed in money and credit also. Foreign exchange क्या होता है? We are earning the money, currency of some other country, right? किसी दूसरे country का जो currency है वो हमारे पास आ जाता है, then we will able to purchase goods from some other country also. So if we do manufacturing, we will export the goods. Yes or no? हम दूसरी country को export करेंगे goods को. जैसे ही हम export करेंगे, from that country we will get foreign currency. Yes or no? With the help of this foreign currency, we can buy some goods like oil. We are not producing oil in our country. Petroleum हम produce नहीं करते हैं, तो हमें दूसरे country से लाना पड़ता है. तो दूसरे country से कोई सामान खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए उस country के, right or not? So it helps in increasing the foreign exchange in our country. Next, it eradicates the poverty and unemployment. So simple सी बात है, अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगे तो पॉवर्टी कम होगा, अगर पॉवर्टी भी कम होगा, एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी, लोगों को काम मिलेगा, राइट? देन नेक्स्ट है हमारा, if we transform the raw material into finished goods, all of you know that finished good have higher value, right? अगर हम रॉ मटेरियल से किसी चीज को फिनिश गुड्स बनाते हैं तो इससे क्या होगा, जो फिनिश गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में ज्यादा होते हैं, राइट? जब हम उस सामान को किसी दूसरे कंट्री में बेचेंगे तो हमारा कंट्री और ज्यादा प्रॉस्परस होगा, राइट और नॉट? और ज्यादा एक अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन में होगा, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. क्वेश्चन, राइट इट डाउन. What are the importance of manufacturing industry or manufacturing? Okay, coming to the next one. Nowadays these industries help agriculture a lot, right? Why we are discussing about agriculture in this chapter? Because all of you know that major population of India are dependent upon agriculture, so we have to look at about the farmers also, right? So certain agro-based industry. What is agro-based industries? All those industries which is helping in the agriculture. ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर के लिए कोई टूल्स, कोई इंप्लीमेंट्स या कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर बनाती है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है. दिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज हेल्पिंग एग्रीकल्चर. हाउ? लुक एट अवर nowadays the production in agriculture increased too much. There are many types of tools produced by these industries like irrigation pumps, fertilizer, insecticide, pesticides, plastics, and PVC pipes, machines, tools, etc. Right? So all these are made in industries. So simple way, these industries are helping in agriculture. Right? Next. So because of this industries, जो आज का डेट का हमारा एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है. ठीक है, एफिशिएंट इन अ मैनर कि हम किसी भी चीज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं है. कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, दे वर्क स्मूथली, राइट? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री. लुक एट हियर, देयर आर सम टूल्स मेड इन इंडस्ट्रीज. ठीक है, यहाँ पर देखो, ड्रोन से फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड्स को डाला जा रहा है फार्मलैंड में, राइट? ओके, now we will talk about the contribution of industry to national economy. So remember once again, I told you in the earlier of this chapter itself that you should remember all the concept of economics also while you are studying geography, right? So remember what is GDP. GDP सभी को पता है कि एक ईयर में कितना प्रोडक्शन होता है. उस GDP का 27% कहां पर प्रोड्यूस होता है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, राइट? अगर 100% GDP है तो उसका 27% कहां पर प्रोड्यूस होता है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है. इन दिस 27% इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. 17% कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग, कि हम किसी गुड्स को बनाते हैं फिनिश गुड्स में, एंड 10% कम्स अंडर द माइनिंग, राइट? माइनिंग एक्टिविटीज, कि कुछ हम माइन कर रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं,
कोल निकाल रहे हैं, 10% यहाँ से जनरेट होता है और 17% यहाँ से जनरेट होता है. So if we look at the manufacturing industry since independence, you will find कि इंडस्ट्री का एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था. जितना होना चाहिए उतना ज्यादा एक्सपेंशन इंडस्ट्री का नहीं हुआ है, राइट. सो जो हमारा ईस्ट एशियन रीजन है, दैट मीन्स एशिया का जो और दूसरे कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन का जो रीजन है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो एवरेज प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में वो 25 to 35 होता है, राइट और नॉट. ठीक है, हमारे कंट्री में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 7% है, लेकिन हम अचीव कर सकते हैं 12% जीडीपी ग्रोथ रेट. जीडीपी मतलब आप लोगों को पता है व्हाट डज दिस लाइंस आर सेइंग कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कंट्री ने 100 रुपीस का प्रोड्यूस किया कोई सामान, तो अगले साल ये कितने का हो जाएगा, कितने का प्रोड्यूस कर रही है हमारी कंट्री, 107 का, राइट. लेकिन हम अचीव कर सकते हैं 112 रुपीस, राइट. एक साल में 12% का ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं इफ वी विल फोकस ऑन इंडस्ट्री, राइट. अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट. सो जो 2003 से लेकर के, ठीक है, कुछ सालों तक, राइट, जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 9 to 10% था पर ईयर का, राइट. बट it is not sufficient, right. Government is making certain plans to improve industries, right. Government कई सारे एक्ट लेके आ रही है, कई सारे हेल्प दे रही है इंडस्ट्रीज को, राइट. ठीक है. सो जो कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि अगले 10 साल में हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे टारगेट को अचीव कर पाएगी, राइट. ठीक है. NMCC has been set with this objective. ठीक है. What is NMCC? इसका फुल फॉर्म आप फाइंड आउट करोगे, राइट. ये एक बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है टू अचीव द हायर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री, राइट. इनका यही काम है. लुक एट नाउ अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. कि एक इंडस्ट्रीज कहां पर हो सकता है. लुक एट हियर, अगर आप पूरे इंडिया को देखोगे तो कई सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर की इंडस्ट्रीज नहीं है, कई सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर की इंडस्ट्रीज हैं. Why there are some areas where a lot of industries are there, but there are some area where there is no any industries. What is the reason behind it? The reason behind it is there are certain factors that decide the location of industry. Remember the class 8th में भी आपने इसको पढ़ा है कि एक इंडस्ट्री कहां पर होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो क्या है फैक्टर्स? दो तरह के फैक्टर्स हैं. पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स and another one is non-geographical factor. What is geographical factor? Availability of raw materials. Obvious सी बात है कि कोई भी इंडस्ट्री कहां पर होगी जहां पर की रॉ मटेरियल्स ज्यादा होगा, राइट और नॉट. कोई भी इंडस्ट्री को वाटर की जरूरत होती है, तो जहां पर वाटर होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडस्ट्री वहीं आसपास होगी. एक अच्छा क्लाइमेट चाहिए इंडस्ट्री के लिए. What are the non-geographical factors? Availability of electricity. इंडस्ट्री अगर मुझे ओपन करना है तो I need electricity, right or not. So whenever I will plan to open an industry, I will look that whether electricity is available or not, cheap and skilled labor is available or not, transportation ठीक ठाक है कि नहीं, रोड ठीक है कि नहीं, communication facilities है कि नहीं, आसपास में मार्केट है कि नहीं जहां पर कि मैं बनाने के बाद उसको सेल कर सकता हूँ, राइट. ठीक है. क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री खोलने के लिए लोगों के पास उतना ह्यूज अमाउंट में पैसा नहीं होता है. विल आई गेट द मनी टू इन्वेस्ट, राइट. क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी सुटेबल है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रही है, कम लगा रही है, तो मैं वैसे जगह पर खोलूंगा जहां पर गवर्नमेंट कम टैक्स लगा रही है, राइट. ठीक है. सो दीज आर द नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ऐसा क्यों होता है? टू इंक्रीज द प्रॉफिट. ठीक है. ये सभी लोकेशन को क्यों देखे जाते हैं, ये सारी चीजें क्यों देखा जाता है, ताकि हमारा प्रॉफिट, जो इंडस्ट्री का ऑनर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट और नॉट. अब सोचो कि अगर मार्केट दूर होगा तो क्या होगा, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बी इंक्रीज, है ना. अब एक बहुत दूर में जाके हमने एक इंडस्ट्री खोल लिया, वहां से काफी ज्यादा दूर मार्केट है,
तो सामान को ले जाने में क्या होगा, काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे मुझे, यस और नो। अब सोचो कि अगर रोड अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं वहां पर? नो, बिकॉज वी कैन नॉट मूव द रॉ मटेरियल्स। अगर रोड नहीं होगा तो हम रॉ मटेरियल्स नहीं ले जा पाएंगे, फिनिश गुड्स नहीं ले जा पाएंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। Okay, for all these factors, whatever you read earlier, it is not possible to be in one place, right? ये सभी कुछ एक जगह पर होना पॉसिबल नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, they look at about कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कि सबसे कम पैसे में ये सारे कुछ अवेलेबल हो जाए, राइट? सबसे कम दूरी पे या सबसे कम खर्च करके मैं ये सब कुछ ले लूं, राइट? तो वैसे जगह को चुन के वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। Whenever one industry is opened at the place, you will look at here कि आप देखोगे ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द सिटीज, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इंडस्ट्री को सिटी में सेटअप किया जाता है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। इंडस्ट्रीज जो होते हैं ये दोनों, इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन दोनों हैंड इन हैंड होता है, ठीक है। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर करते हैं कि वो सिटी के आसपास इंडस्ट्री को ओपन करें, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर एक इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर कई सारे लोग रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो जगह सिटी में बदल जाता है, राइट? सो नाउअडेज, राइट, व्हेनेवर यू विल सी कि एनी इंडस्ट्रीज आर देयर, आप क्या देखोगे कि वहां पर कई सारी और भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आ जाती है। टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लुक एट हियर दैट in Karnataka, if in one place Tata Motors opened a factory, Tata Motors ने एक फैक्ट्री ओपन किया, कार कंपनी, ठीक है, कार को मैन्युफैक्चर करने का, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो क्या होगा, डू यू नो दैट बिकॉज ऑफ दिस टाटा मोटर्स देयर विल लॉट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल आल्सो ओपन आसपास में। फॉर एग्जांपल, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो टायर सप्लाई करती है, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो उसको ग्लास प्रोवाइड कराएगी टाटा मोटर्स को, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पर ओपन हो जाएंगी जो कि कई सारे इक्विपमेंट्स बनाएंगी कार कंपनी की, ठीक है। इसके अलावा वहां पर रेस्टोरेंट खुल जाएगा टू फीड द वर्कर्स, ठीक है, वहां पर सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे, राइट और नॉट, ठीक है। तो जब लोग रहने लगेंगे तो वहां पर मार्केट्स भी हो जाएंगे। सो यू विल लुक एट हियर कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है इसकी वजह से, ये छोटी छोटी इंडस्ट्री आई, इस छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ, कई सारे लोग और ज्यादा वहां पर बढ़ गए। जब और ज्यादा लोग बढ़ गए तो उनको नीड को पूरा करने के लिए और भी कई सारी आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने लगी, राइट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है। जब एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, सर्विस, इंडस्ट्रीज, ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं टू कट देयर कॉस्ट, ठीक है, सभी लोग एक साथ आ जाते हैं, सभी लोग एक जगह ओपन कर लेते हैं ताकि उनका जो खर्चा बच जाए, है ना। अब सोचो कि एक कार कंपनी किसी जगह पर बनी है, राइट, और एक टायर कंपनी कहीं तमिलनाडु में है, कर्नाटक में एक कार कंपनी, तमिलनाडु में टायर की कंपनी। सो डू यू थिंक दैट देयर विल अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू bring the tires from तमिलनाडु टू कर्नाटका? ऑब्वियस, काफी ज्यादा खर्च होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कई सारी कंपनीज, कई सारी सर्विसेज आसपास में ही क्या होती है, सेटअप हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, राइट। सो व्हाट इज आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? तो सिंपल सा यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उस जगह पर वो देखना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, रॉ मटेरियल को लाने का खर्च कितना है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना खर्च आएगा, राइट। देन ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या होता है, फैक्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करता है, ठीक है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, ठीक है। सो क्या वहां का प्लेसेस सुटेबल है, ये सारी चीजें देख के हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, ओके। Now the question is कि why are the major industry located near cities? सिंपल सा क्वेश्चन, सेम आंसर होगा, क्योंकि सिटीज के पास उनको क्या अवेलेबल होता है, मार्केट भी अवेलेबल होता है, यस और नो। चीप लेबर भी मिल जाते हैं सिटीज के आसपास, क्योंकि कई सारे लेबर भी वहां पर रहते हैं, राइट। सो दीज आर द रीजन बिहाइंड द मेजर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर सिटीज, राइट।
नॉट ओनली दिस, कई बार ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री ओपन होता है और आसपास धीरे धीरे सिटीज डेवलप हो जाते हैं, राइट। सो बिफोर इंडिपेंडेंस द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड नियर पोर्ट एरिया। ज्यादातर इंडस्ट्री कहाँ पर होते थे? पोर्ट एरिया में, जैसे मुंबई है ना, कोलकाता, उसके बाद मछलीपट्टनम। So these are the places where industries were located. But now, because we have a good amount of transportation facility in our country, जो इंडस्ट्रीज हैं वो पोर्ट के पास ही नहीं और भी कई सारे जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो पोर्ट के जगह पर होना का मतलब सिंपल सा है कि दिस इंडस्ट्री वांट टू एक्सपोर्ट द गुड्स, दैट्स व्हाई दे सेट अप इट नियर द पोर्ट, ठीक है, ताकि पोर्ट पर आसानी से सामान को दूसरे कंट्री भेजा भी जा सके। और अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में तो उस रॉ मटेरियल को दूसरे कंट्री से मंगाया भी जा सके। लेकिन अब जो है हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन लोकेट इंडस्ट्रीज एनीवेयर इन द कंट्री। सो लुक एट हियर, दिस इज इंडस्ट्री मार्केटेड लिंकेजेस, ठीक है। कैसे इंडस्ट्री और मार्केट के बीच लिंक है, देखो इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए। इंडस्ट्री नीड्स इनपुट्स, राइट, दे नीड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोड्यूस करने के बाद वट एवर इट इज रॉ मटेरियल्स को कहाँ लेके जाया जाएगा, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए फैक्ट्री तक। उसके बाद फैक्ट्री के बाहर उसको प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फिर चाहिए, ये मार्केट में आएगा, राइट। फिर मार्केट से मनी कहाँ जाएगा, वापस से इंडस्ट्री के पास जाएगा। यस और नो, मार्केट टू यहाँ फॉर एग्जांपल चेन ऑफ मार्केट आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इंडस्ट्री में सामान बनते हैं एंड दे आर गोइंग टू द मार्केट। सो मार्केट तक सामान आएगा और मार्केट से पैसा वापस से इंडस्ट्री के पास जाएगा, दैट इज industry market linkage. Now we are talking about the classification of industry. That means how we are dividing industries. So industry को हम कई भागों में divide किया है हमने, on the basis of raw material, on the basis of main role, on the basis of capital investment, ownership, bulk and weight of raw material. So raw material के basis पे हमने दो भाग में divide किया है, agro based industry, mineral based industry. Main role के basis पे बेसिक की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑनरशिप के बेसिस पे पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, एंड बल्क एंड वेट हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। सो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।